ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام ماجد ہے۔ میں ایک بینک میں بہت اچھی پوسٹ پر جاب کر رہا ہوں۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد ہوں۔ بچپن سے لے کر آج تک میرے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات پوری ہوئی ہے۔ میری زندگی کے چند سال پرسرار واقعات سے بھرے ہوئے ہیں، ایسے واقعات جن کو عقل تسلیم کرنے سے انکاری ہو جاتی ہے۔ میری طرح بہت سے لوگ ہوں گے جو ایسے واقعات کو من گھڑت سمجھتے ہوں گے۔ میں بھی پہلے پہل جن بھوتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، مجھے ان کے وجود پر یقین تھا کیونکہ ان کا ذکر قرآن پاک میں ہے، مگر مجھے ان کی انسانوں میں موجودگی، انسانوں کو ان کو تنگ کرنا، یہ باتیں مجھے ہضم نہیں ہوتی تھیں۔ میرا ماننا تھا ان کی اپنی دنیا ہوتی ہے، ان کی اپنی زندگی ہوتی ہے، ان کا انسانوں کی دنیا میں کیا کام۔ اور جہاں تک بات آ جاتی ہے روحوں بدروحوں کی، تو انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کا اس دنیا سے سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد انسان کی روح کہاں جاتی ہے واللہ علم، مگر وہ کم از کم اس دنیا سے چلی جاتی ہے۔ مگر پھر کچھ ایسا ہوا جس سے میرے خیالات بدل گئے۔ آج بھی جب میں اس راستے سے گزرتے ہوئے گھر جاتا ہوں تو میں ایک بار اندر سے کانپ جاتا ہوں۔ مجھے ایک ایک کر کے سارے واقعات یاد آنے لگتے ہیں۔ میری بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو میرے ساتھ ماضی میں جانا پڑے گا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری بینک میں نئی جاب لگی تھی۔ میں ان دنوں بہت خوش رہنے لگا تھا۔ میری درینہ خواہش پوری ہو گئی تھی۔ مجھے دن کے 12 سے لے کر رات 12 بجے تک وہاں پر کام کرنا ہوتا تھا، اور اس روٹین سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ میں نارملی رات کو 12 بجے سونے کا عادی تھا اور پھر دن چڑھے تک سوتا رہتا تھا۔ یہ ٹائمنگ مجھے سوٹ کرتی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے ہمارے پڑوس میں ایک نئی فیملی شفٹ ہوئی تھی۔ وہ لوگ بہت ملنسار اور خوش اخلاق تھے۔ ان کی ایک بیٹی تھی سارا، وہ BCom کی اسٹوڈنٹ تھی اور اس کے پیپرز ہونے والے تھے۔ جب اس کی امی نے مجھ سے کہا کہ بیٹا اگر تم 1-2 گھنٹہ سارا کو اکاؤنٹ کروا دیا کرو گے تو اس کے پیپرز اچھے ہو جائیں گے، اور یہ کہتی ہے کہ میری اتنی اچھی تیاری نہیں ہے، کالج سے اسے چھٹیاں ہیں، اس نے اکیڈمی جوائن کی ہوئی ہے، مگر اس کے باوجود اس کی کچھ خاص تیاری نہیں۔ میرے بولنے سے پہلے ہی امی بول پڑی، ہاں تو کیوں نہیں کروائے گا، یہ صبح جاب پر جانے سے پہلے اس کو 2 گھنٹے کے لیے پڑھا دیا کرے گا۔ میں نے اپنا سر پیٹ لیا، میرا بالکل بھی اس کو پڑھانے کا کوئی موڈ نہیں تھا، مگر اب امی نے حامی بھر لی تھی تو میں ان کو انکار بھی نہیں کر سکتا تھا، ورنہ وہ ناراض ہو جاتی مجھ سے۔ اگلے ہی دن وہ میرے پاس پڑھنے کے لیے آنا شروع ہو گئی۔ جب میں نے اس کو پڑھانا شروع کیا تو وہ مجھے ہلکی سی حیرانگی ہوئی کیونکہ وہ بہت زیادہ ذہین تھی۔ میں تو اسے کن ذہن سمجھ رہا تھا، اور جہاں تک میرا اندازہ تھا اس کی اکاؤنٹنگ کی ٹھیک ٹھاک تیاری تھی، تو پھر وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی کہ اس کی تیاری نہیں ہے؟ اس بات کا جواب مجھے کچھ دن تک مل گیا۔ میں اس کو پڑھا رہا ہوتا تو بجائے پڑھنے کے وہ مجھے دیکھنے میں مصروف ہوتی۔ میں نے اس کو بار بار ٹوکا کہ اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ مجھے اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ آ رہا تھا کہ وہ مجھے پسند کرنے لگی تھی، مگر میں نے اس بات کو اس کی کم عمری سے تشبیہ دی اور اسے نظر انداز کرنے لگا۔ لیکن ایک دن تو حد ہی ہو گئی، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں اس کی بے باکی پر حیرت زدہ رہ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے سارا؟ ایک دم سے ہی مجھ میں غصہ آ گیا۔ میں آپ کو بہت زیادہ پسند کرتی ہوں، میں اس لیے آپ سے پڑھنے کا بہانہ کیا تھا تاکہ آپ سے بات کر سکوں، آپ کو جی بھر کر دیکھ سکوں۔ شٹ اپ سارا، تم ہوش میں تو ہو؟ جانتی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ اسے شاید میرے اس رویے کی توقع نہیں تھی۔ وہ رونے لگی اور مجھ سے محبت کی بھیک مانگنے لگی۔ میں نے اسے ڈانٹا اور کہا، اپنی بکس اٹھاؤ اور چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اگلے 2-3 دن تک وہ میرے پاس پڑھنے کے لیے نہیں آئی۔ میں نے سوچا عقل ٹھکانے آ گئی ہوگی، مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ اگلے دن میرے سامنے تھی وہ، حشاش بشاش اور پہلے کی طرح ہلکا ہلکا میک اپ کیے ہوئے، خوش رنگ لباس پہنے ہوئے، ادائیں دکھاتے ہوئے وہ گویا مجھے رجھانے کی کوشش میں تھی۔ غصے کی ایک شدید لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے غصے پر قابو کر کے اسے ایک ٹاپک سمجھایا۔ پھر میں نے امی سے سختی سے کہا کہ میں نے آج کے بعد اس سے نہیں پڑھانا، آپ آنٹی کو منع کر دیں۔ وہ بولی 2-4 دن ہی تو رہ گئے ہیں اس کے پیپرز میں، اچھی تیاری ہو جائے گی اس کی۔ مگر میں نے اسے 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ بس آپ آنٹی کو منع کر دیں۔ پھر اس کے بعد وہ پڑھنے کے لیے تو نہیں آئی، مگر ہمارے گھر میں گاہے بگاہے آتی رہتی تھی۔ ان دنوں میری امی نے میری شادی کا ذکر چھیڑ دیا۔ وہ میری خالہ زاد نور کے ساتھ میری شادی کرنا چاہتی تھی۔ نور کو میں بھی بہت پسند کرتا تھا، اس لیے میں نے انہیں مثبت جواب دے دیا۔ وہ خوشی خوشی خالہ سے میرے لیے نور کا ہاتھ مانگنے چلی گئیں، اور یوں کچھ ہی مہینے بعد ہماری شادی ہونا طے ہو گئی اور شادی کی تاریخ مہینے کے بعد رکھی گئی۔ ہماری منگنی میں کچھ ہی دن رہ گئے تھے جب سارا میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، آپ شادی کر رہے ہیں؟ مجھے اس کے انداز پر بہت زیادہ غصہ آیا۔ ہاں تو کیا تمہیں اس بات پر کوئی اعتراض ہے؟ جی اعتراض ہے، کیونکہ آپ کی شادی صرف میرے ساتھ ہوگی۔ میں اسے سخت سست کہنے لگا تھا جب امی آ گئیں اور اس سے منگنی کی تیاری کے بارے میں ڈسکس کرنے لگی۔ سارا کی امی کے ساتھ بہت زیادہ بنتی تھی، امی سے بہت زیادہ پسند کرتی تھی۔
यही वजह थी कि वो हमारे घर में हर वक्त घुसी रहती थी। मैं सर झटकते हुए अपनी जॉब पर आ गया। कुछ दिन बाद हमारी मंगनी भी बहुत अच्छे तरीके से हो गई। अब मेरी नूर के साथ अक्सर फ़ोन पर बात होती थी, मगर पिछले कुछ दिनों से मुझे उसके लहजे में इज़्तिराब महसूस होता था। मुझे ऐसे लगता था जैसे वो परेशान है। मैं कोई बात करता तो चौंक पड़ती थी। मैंने बारहा उससे पूछा कि क्या मसला है, क्यों परेशान हो। एक दिन वो मुझसे बात करते करते रोने लगी। मैं परेशान हो उठा। मैंने रोने की वजह पूछी तो कहने लगी, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, क्या तुम मुझ पर यकीन करोगे? मेरी अम्मी मेरा यकीन नहीं करती हैं। मैंने उसे यकीन दहानी करवाई कि उसकी ज़रूर बात सुनूंगा और उसकी मदद भी करूंगा। वो कहने लगी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे अनदेखी चीज़ें नज़र आती हैं, मुझे डरावने ख्वाब आते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे मारने की कोशिश में है। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कहने लगी, क्या तुम किसी ऐसे नेक इंसान को जानते हो जो दम दरूद करते हो? मुझे चौंका इन चीज़ों पर यकीन नहीं था, मगर मैंने नूर से ऐसा कुछ नहीं कहा। उसे तसल्ली दी कि शादी के बाद मैं तुम्हें ले जाऊंगा। दर हकीकत मुझे लगता था कि उसके साथ कोई नफ्सियाती मसला है और मैं सोच रहा था कि शादी के बाद उसे किसी माहिर नफ्सियात को दिखाऊंगा। फिर वो अक्सर मुझसे अपने खौफ का तस्करा करने लगी। मैं सुनकर उसे तसल्ली दे देता। हमारी शादी का दिन भी आन पहुंचा। मैं सारा को देखकर हैरान था। वो हर चीज़ में ऐसे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये देखकर मुझे भी तसल्ली हो गई कि चलो उसे समझ तो आ गई। शादी के बाद कुछ दिन हमारे घूमने फिरने में लग गए, मगर मुझे नूर के चेहरे पर खुशी नजर नहीं आती थी। उसके चेहरे पर डर खौफ नजर आता था। मैं उसे एक माहिर नफ्सियात के पास लेकर गया और उसने कुछ मेडिसिन लिख कर दी और कहा इन्हें बाकायदगी से इस्तेमाल करवाएं, मगर उन मेडिसिन से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं दिल ही दिल में झुंझलाने लगा था, गुस्सा करने लगा था। वो रातों को सोते हुए चीखें मारते हुए उठ जाती थी। अब मेरे गुस्से के ख्याल से डर का इजहार नहीं करती थी। अपने अंदर ही अंदर उसने अपने खौफ को दबा लिया था। अब वो उम्मीद से थी और मैं उसका बहुत ख्याल रखने लगा था। मैं उसके डर खौफ को उसका नफ्सियाती मसला ही समझता रहता। अगर इस दिन वो वाक़या ना होता, मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और वो अपने और मेरे लिए दूध का ग्लास लेकर आ रही थी। एकदम से उसके हाथ से ट्रे छूटकर नीचे गिर गई। उसकी चीख बेसाख्ता थी। उसके पांव ज़मीन से ऊपर उठने लगे और वो छत के साथ जाकर लगी। वहाँ से फिर वो ज़ोर से ज़मीन पर आकर गिरी। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि मुझे संभलने का और समझने का मौका ही ना मिला। मैं उसको उसी वक्त अस्पताल ले आया। मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म हो गया था और नूर की तबीयत भी बहुत नासाज थी। 2 दिन ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद उसने मौत को शिकस्त दे दी। मैं उसके बच जाने पर खुदा का शुक्र अदा कर रहा था और साथ में खुद को कोस रहा था कि मैंने पहले उसकी बात क्यों नहीं सुनी। अगर मैं पहले इसकी बात मान लेता तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। अब मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं किसी अल्लाह वाले के पास नूर को ज़रूर लेकर जाऊंगा। इस सिलसिले में मैंने अपने एक दोस्त से बात की। उसने मुझे एक बुज़ुर्ग का पता दिया। वो इस बुज़ुर्ग के पास अपनी कज़न को लेकर गए थे। इसके कज़न पर जिन आते थे और वहाँ जाने से वो ठीक हो गई थी। अब मैंने सोच लिया था कि मैं इनके पास नूर को लाजमी लेकर जाऊँगा। अगले दिन मैंने बैंक से छुट्टी ले ली और नूर को लेकर वहाँ पर चला गया। वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था। बहुत सारे लोग जमा थे जो अपने मसाइल के हल के लिए आए थे। हम दोनों भी वहाँ पर जाकर बैठ गए और अपनी बारी का इंतज़ार करने लगे। काफ़ी देर के बाद हमारी बारी भी आ गई। इस बुज़ुर्ग हस्ती को सब मियाँ जी के नाम से बुला रहे थे। सबकी देखा देखी मैंने भी उन्हें मियाँ जी कहना शुरू कर दिया और फिर उन्हें अपना मसला बताया। मेरी बात सुन के वो तहम्मुल से बोले, तुम्हारी बीवी पर किसी ने जादू किया है और जादू के जोर पे इस बच्चे पे जिन्नात मुसल्लत किए हैं, जिसकी वजह से इसके साथ ऐसा हो रहा है। ये बात सुन के मैं परेशान हो गया। तो मियाँ जी, इसका कोई हल तो होगा ना? हाँ बेटा, अल्लाह पाक की कलाम में बहुत ताकत है, बहुत तासीर है। जिस नेक मकसद के लिए पढ़ोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। ये पढ़ाई तुम्हें या तुम्हारी बीवी को करनी होगी। मैंने कहा ये अमल मैं खुद करूँगा, मुझे और मेरी बीवी को कुछ हदायत दें। उन्होंने मुझे और नूर को 2 तावीज़ दिए और कहा इसे खुद से अलग नहीं करना। वो तावीज़ हमें गले में पहनने के लिए दिए थे। फिर उन्होंने एक बोतल में पानी दम करके दिया और कहा इसे घर में छिड़क देना। मैंने उनकी तमाम हदायत को गौर से सुना और घर आ गया। ये अमल 1 हफ्ते का था। उन्होंने कहा था जब इस अमल का आखिरी दिन होगा तो जिसने जादू किया है जादू उस पर पलट कर जाएगा। मैंने कहा मियाँ जी, मेरा मकसद किसी से इंतकाम लेना नहीं और ना मैं ये चाहता हूँ कि मैं किसी को नुकसान पहुँचाऊँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि हमारी इस चीज़ से जान छूट जाए। मेरी बात सुन के मियाँ जी मुस्कुराए और बोले, जाओ, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। मैं जब अपनी जॉब से वापस आता था तो रात को ही वजीफ़ा करता था। पहले 2-3 दिन तो नूर की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। मैंने मियाँ जी को इस बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि ये सब तुम्हें इस वजीफ़े से रोकने के लिए किया जा रहा है। मैं जब वजीफ़ा कर रहा होता तो नूर दर्द से चिल्लाती रहती। वो रोती, मेरी मिन्नतें करती कि इस अमल को रोक दो। मगर अब जब मैं वजीफ़ा शुरू कर चुका था तो मैंने इसे मुकम्मल करके ही उठना था। जब वजीफ़े का आखिरी दिन था, जैसे ही मेरा वजीफ़ा ख़त्म हुआ नूर की तबीयत संभलने लगी।
उसने कहा, मुझे लगता है मैं अब हल्की फुल्की हो गई हूँ। पहले मेरा सर बहुत ज़्यादा भारी रहता था, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कोई तकलीफ, कोई दर्द, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। शाह साहब ने कहा था, जब वजीफे का आखिरी दिन होगा तुमने पानी दम करके अपनी बीवी को देना है। मैंने उसे पानी दम करके दिया। थोड़ी ही देर गुजरी थी जब पड़ोस से चीखों की आवाज़ें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को कुन छुरी से ज़िबा किया जा रहा हो। हम दोनों हैरान परेशान से हो गए, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। इतने में अम्मी अबू भी जाके वो भी अपने कमरे से बाहर निकल आए। उन्होंने कहा, ये आवाज़ें तो सारा के घर से आ रही हैं। हम जब उसके घर की जानिब लपके तो और भी मोहल्ले के काफ़ी लोग दरवाजे के बाहर खड़े थे। आवाज़ें घर के अंदर से आ रही थी। सब हैरान परेशान थे कि क्या हो रहा है। इतने में एक नौजवान ने दीवार फैलांग के अंदर से दरवाज़ा खोला तो सब अंदर चले गए। ये आवाज़ें ऊपर वाले पोर्शन से आ रही थीं। जब हम सब लोग ऊपर वाले पोर्शन में गए तो अगला मंजर देखकर सब हैरान और परेशान रह गए। सारा बुरी तरह से आग में जल रही थी। वो सब लोग इनकी आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, मगर आग बुझने की बजाय मजीद भड़क रही थी। उसके मुंह से बहुत दर्दनाक आवाज़ें निकल रही थी। फिर रफ्ता रफ्ता ये आवाज़ें दम तोड़ गईं। वो बेसूद होकर फर्श पर गिर गई और उसकी आग भी खुद ब खुद बुझ गई। जब उसको अस्पताल ले जाया गया तो उन्होंने कहा, ये काफ़ी देर पहले ख़त्म हो चुकी है। ये मंजर देखकर मुझे एक ज़ोर का झटका लगा था। मुझे मियाँ साहब की बात याद आई, जिसने जादू किया होगा जादू उसी पर पलट कर जाएगा। और यही बात नूर ने भी महसूस की। जब सारा की तदफीन के बाद हम लोग घर वापस आए तो नूर ने मुझसे इस सिलसिले में बात की। फिर मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया कि वो मुझे पहले पसंद करती थी, मुझसे शादी करना चाहती थी। नूर ने कहा, इसीलिए इन पुरसरार वाक़यात का सिलसिला जब से मेरी मंगनी हुई है तब से ही शुरू हुआ। ऐसा लगता है जैसे वो मुझे जान से मारना चाहती थी। मैंने नूर से कहा कि तुम इस बारे में किसी से कोई बात न करना, इस राज को राज ही रखना है। अंकल आंटी की बहुत बुरी हालत हो रही थी। वो जवान बेटी की अचानक मौत से गुमसुम होके रह गए थे। अगले दिन जब मैं मियाँ साहब के पास गया, उन्हें ये सारी बात बताई तो उन्होंने भी मेरे शक की तस्दीक कर दी। मुझे इस बात की हैरानगी थी कि सारा जादू कैसे करवा सकती है। वो किसी जादूगर तक कैसे पहुंची होगी। इसको फोत हुए 1 महीना होने वाला था जब मेरे साथ पुरसरार वाक़यात का सिलसिला शुरू हुआ। पहले मैंने अपना वहम समझा, इस बात को इतनी तवज्जो नहीं दी, मगर रफ्ता रफ्ता ऐसे वाक़यात होने लगे जिसको अक्ल तस्लीम करने से इनकारी हो जाती थी। नूर के साथ भी वही सिलसिले शुरू हो गए। वो अब फिर से डरने लगी थी। उसकी फिर से वही हालत देख के मैं परेशान हो गया था। मैं ख्वाब में बहुत ज़्यादा डरने लगा था। जब सो रहा होता तो मुझे ऐसे लगता जैसे कोई मेरे ऊपर आकर बैठ गया है। कभी ऐसे लगता जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है। मुझे आवाज़ सुनाई देती थी। अजीब अजीब से चेहरे नज़र आते थे। इस दिन तो हद ही हो गई। मैं अपने कमरे में सो रहा था जब मुझे ऐसे लगा जैसे मुझ पर पानी की बूंदें गिर रही हैं। फिर इन बूंदों की रफ्तार तेज़ हो गई। लग रहा था जैसे बारिश हो रही है। जब मैंने आंखें खोली तो मैं देखकर हैरान रह गया। मैं इस वक्त छत पर सो रहा था और तेज़ मूसलाधार बारिश लगी हुई थी। खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं तेज़ी से नीचे भागा। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। जब मैंने कमरे में जाकर लाइट ऑन की तो इतने में नूर की भी आंख खुल गई। इसने पूछा, क्या आप बारिश में भीगते रहे हैं? मैंने उसे टाल दिया कि हाँ, मेरा दिल कर रहा था। इस दिन मैंने फैसला किया कि मुझे मियाँ जी के पास जाना चाहिए। फिर अगले दिन मैं मियाँ जी के पास गया और उनसे अपने साथ होने वाले तमाम वाक़यात का जिक्र किया। मियाँ जी पहले तो पढ़ाई करते रहे, फिर उन्होंने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा। वो पहले की निस्बत परेशान लग रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा वो तो मर चुकी है, मगर उसके काले अमलियात के काले साए यहीं रह गए और ये काले साए मुजस्सम उसकी शक्ल में हैं। ये तुम्हें उसके ही रूप में नजर आएंगे चूँकि वो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहती थी। अब उसके मरने के बाद ये सारे तुम्हारी ज़िंदगी के दुश्मन बन गए हैं। वो तुम्हें ख़त्म कर देना चाहते हैं। बेटा, ये दुनिया अजायबात और करिश्मात से बड़ी पड़ी है। यहाँ आपको कदम कदम पर ऐसे वाक़यात देखने को मिलेंगे जिनको मानने से आपकी अक्ल इंसानी इनकार कर देगी, मगर वो वाक़यात हकीकत में अपना वजूद रखते होंगे। हमारा तो यही अकीदा है कि मरने के बाद इंसान की रूह वापस चली जाती है और इसका इस दुनिया से सिलसिला मुनक़ता हो जाता है और वो वापस नहीं आ सकती। मगर चूंकि ये लड़की तुम्हारी मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी, उससे अच्छे बुरे की तमीज़ ख़त्म हो चुकी थी, वो किसी भी हद तक जा सकती थी, इसलिए वो शैतान की पुजारी बन गई थी। और अब चूंकि वो खुद तो ख़त्म हो गई, मगर अब उस काले साए को ख़त्म करना होगा और ये काम तुम्हें खुद करना होगा। कोई दूसरा इंसान तुम्हारे लिए ये काम नहीं कर सकता। मैं ये सब सुनकर हद परेशान हो गया था। मियाँ जी, अब मुझे क्या करना होगा? मैं कैसे इस साए से छुटकारा हासिल कर सकता हूँ? आप ही मेरी मदद करें प्लीज़। मेरी तो ज़िंदगी अजीरन हो गई है। मियाँ जी बोले, बेटा ये काम मुश्किल तो ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। अब वो साया तुम्हारे लिए इस दुनिया में आया था। वो जब तक अपने मकसद में कामयाब ना हो जाए वो वापस नहीं जाएगा। उसे ख़त्म करने के लिए तुम्हें एक अमल करना होगा। ये अमल 20 दिन का होगा और तुमने कब्रिस्तान में उसकी कब्र के पास बैठ के करना होगा।
मैं तो ये सुनकर मजीद परेशान हो गया। मियाँ जी, अब मैं कब्रिस्तान में बैठकर ये अमल कैसे करूँगा? ऐसे में क्या कब्रिस्तान के जिन भूत नुकसान नहीं पहुँचाएंगे? नहीं, क्योंकि तुम्हारा मकसद नेक है। तुम्हें कोई जिन भूत नुकसान नहीं पहुँचाएगा, ना तुम्हें डराएगा। तुम्हें सिर्फ इस साय से खतरा होगा। अगर तुम किसी जिन भूत को काबू करने के लिए ये अमल कर रहे होते तो वो तुम्हें नुकसान पहुँचाते, तुम्हें डराते धमकाते। मैं तुम्हें एक तवीज़ दूंगा, तुमने हमेशा अपने पास रखना है। जब तक वो तवीज़ तुम्हारे पास होगा, वो साया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तुम्हें भटकाने के लिए वो चाले चलेगा, तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करेगा, मगर तुमने इसकी किसी बात में नहीं आना। तुम्हें बहुत होशियारी से काम लेना होगा और मेरे राब्ते में रहना। जो भी बात हो मुझे साथ साथ बताते रहना। मैं तुम्हारे लिए दुआ को रहूँगा। वहाँ से घर वापस आने के बाद मैं ड्यूटी पर चला गया। रात को जब मैं घर वापस आया तो मैंने नूर को सारी बात बताई। ये सारी बात सुन के वो भी बहुत परेशान हो गई। फिर मैंने उसे तसल्ली दी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी तसल्ली देने पे वो थोड़ी मुतमईन हो गई। मैं अपना ज़रूरी सामान उठाकर कब्रिस्तान में आ गया और अपना अमल शुरू कर दिया। पहले 3-4 दिन तो मेरे साथ कोई पुरस्कार वाक़यात पेश ना आया, मगर उसके बाद तो जैसे खौफनाक दिल दहला देने वाले वाक़यात का सिलसिला भी शुरू हो गया। चीज़ का कलेजा चबाते हुए नजर आती तो कभी किसी खौफनाक अफरेद की शक्ल में नजर आती। कभी वो मेरी मिन्नतें करने लगता, ये अमल रोक दो, तो कभी वो मुझे धमकियाँ देने लगता। मैं उसकी सुनी अनसुनी करते हुए अपना अमल करता रहता। मेरे अमल करते हुए 10 दिन हो गए थे और मज़ीद 10 दिन बाकी थे। मेरे रास्ते में एक टैक्सी स्टैंड आता था, इससे आगे बस स्टैंड आ जाता। वहाँ पे फिर इक्का दुक्का लोग नजर आते थे, जबकि बाकी रास्ता सुनसान था। मैंने पहले तो कभी इस रास्ते की सुनसानी को महसूस नहीं किया था, मगर अब जब से मेरे साथ ये वाक़यात हो रहे थे मुझे डर लगने लगा था। आज सुबह नहाने के लिए गुसल खाने में गया तो अपना तवीज़ उतार कर दराज में रखा। मैं बाहर आकर तवीज़ उठाने ही लगा था जब अम्मी ने मुझे आवाज़ दी थी। मैं उनकी बात सुनने के लिए बाहर चला गया और तवीज़ को भूल गया और वहीं से बैंक चला गया। पिछले कुछ दिनों से जब मैं बैंक से वापस आ रहा होता तो वहाँ एक लड़की को खड़े देखता। वो देखने में छोटी सी कमसिन लड़की थी। एक बार मैंने उससे पूछा कि वो कौन है और यहाँ पर क्यों खड़ी रहती है, तो उसने कहा कि वो एक अस्पताल में नौकरी करती है और उसकी ड्यूटी रात को 12 बजे ख़त्म होती है। उसकी छोटी उम्र की वजह से मुझे उस पर तरस आ गया। उसने कहा कि उसके घर में कमाने वाला कोई भी नहीं, इसलिए उसे मजबूरन घर से निकलना पड़ा। मेरी ड्यूटी भी रात 12 बजे ख़त्म होती थी। घर जाने लगता तो रोज़ वो 16 साल लड़की मेरे पास आती और कहती, मैं अकेली हूँ, आप मुझे टैक्सी स्टैंड पर छोड़ दें। मैं उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर उसे टैक्सी स्टैंड पर छोड़ देता और ख़ुद आगे चला जाता। एक दिन लड़की बोली, मुझे आज टैक्सी नहीं मिलेगी, मुझे मेरे घर छोड़ दें। मैं तरस खाकर उसको उसके घर छोड़ने गया कि जवान लड़की है, और जैसे उसके घर आया पीछे मुड़कर देखा तो जान निकल गई। वो तो सारा थी। अब वो ज़ोर ज़ोर से कह के लगा रही थी, हा हा हा, आखिर तुम मेरे जाल में फंसे गए, मेरी चाल में आखिर आ ही गए तुम। अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? मैं कब से इस इंतज़ार में था कि तुम मुझे इस तवीज़ के बगैर मिल जाओ, और आज तुम मिल गए। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मेरा तो गोया वही हाल था कि काटो तो बदन में लहू नहीं। खौफ से मैं जर्द पड़ गया। मुझे अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। वो मेरी तरफ बड़े खूनखार तेवरों से बढ़ी। मुझे रह रहकर अपने अम्मी अब्बू और नूर का ख्याल आ रहा था कि मेरे बाद इनका क्या होगा। इसके हाथ बस मेरी गर्दन तक पहुंचने ही वाले थे। मेरे कान में शाह साहब की आवाज़ गूंजी, ऊंची आवाज़ में आयतल कुर्सी पढ़ो और बाहर की तरफ दौड़ लगा दो। चुनाचे मैंने ऐसा ही किया। जो ही उसके कानों तक आयतल कुर्सी की आवाज़ पहुंची, वो ज़ोर ज़ोर से चीखे मारने लगे, बस कर दो, छोड़ दो, बंद कर दो इसे पढ़ना। मगर मैं मुसलसल आयतल कुर्सी पढ़ता हुआ बाहर की तरफ देखने लगा। मैंने बहुत स्पीड से गाड़ी को भगाया। जो मैं गाड़ी तेज़ भगा रहा था, वो साया गाड़ी के साथ साथ उड़ रहा था। खौफ से मेरे रोंगटे खड़े थे। मुझे कानों में शाह साहब की आवाज़ गूंजी कि तुम ड्राइविंग पर ध्यान दो और तुम्हारा एक्सीडेंट करवाना चाहता है। कितनी बार मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा। मैं जब घर पहुंचा तो मेरा बुरा हाल था। मेरी हालत देखकर मेरी बीवी परेशान हो गई। फिर उसने मुझे पानी का ग्लास ला कर दिया। पानी पीकर मेरे हवास बहाल हुए। उसे अपने साथ हुए तमाम वाक़यात बताए। ये सब सुनकर उसने कहा, कुछ देर पहले मैंने दराज खोला तो आपका तवीज़ देखा था। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर मैंने मियाँ साहब को कॉल किया और उन्हें बताया। उन्होंने मुझे तसल्ली दी और कहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो संभाल लेंगे। अब आप घर वापस आए हैं तो अब मेरे दिल को तसल्ली हुई है। थोड़ी देर के बाद मैं अमल करने के लिए चला गया। मेरे अमल मुकम्मल होने को एक ही दिन रहता था। मुझे मियाँ साहब ने कहा, तुम्हें बेहद मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो अब कोई मज़ीद चालाकी दिखाएगा। मैंने मियाँ साहब को तसल्ली दी और कहा, मैं बेहद मोहतात रहूँगा। उन्होंने कहा, जब तुम अमल मुकम्मल कर चुको तो एक पानी पर दम करना और वो पानी सारे पर छिड़क देना, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अमल मुकम्मल हो गया तो मैंने अपने पास पानी की एक बोतल रखी हुई थी। मैंने इस पानी पर दम कर दिया। मैं अमल मुकम्मल कर चुका था तो वो वहाँ से गायब हो चुका था। मैं थोड़ा सा परेशान हो गया कि ये कहाँ गायब हो गया और मुझे कहाँ मिलेगा। फिर मैंने सोचा मैं शाह साहब से इस बाबत बात करूँगा और बोतल उठाकर मैं घर आ गया।
मैं सीधा अपने कमरे में गया। कमरे की लाइट ऑन थी और नूर बिस्तर पर अकड़ो होकर बैठी थी। उसने सारे बाल चेहरे के आगे डाले थे। मैं हैरत ज़दा देखता आगे बढ़ा और कहा, नूर ऐसे क्यों बैठी हो, क्या हुआ है? वो खामोशी से बैठी रही। जब मैं थोड़ा और करीब गया तो उसने एक झटके से अपना सर उठाया और बाल पीछे किए। मैं दहल कर रह गया। वो बहुत ज़्यादा खौफनाक लग रही थी, इतनी ज़्यादा कि बयान से बाहर है। वो ज़ोर ज़ोर से कहके लगाने लगी, हा हा हा, तुम तो मुझे इस दुनिया से भेजने वाले थे। तुम्हारे घर आ गई मैं, अब बताओ क्या करोगे तुम? ये मंजर देख कर तो मैं बौखला गया। मैंने फ़ौरन शाह साहब को कॉल मिलाई, उन्हें सारी बात बताई। मेरी बात सुन के वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और कहने लगे, वो पानी की बोतल संभाल के रखना, इस पानी के ज़रिए ही हमने उसको ख़त्म करना है, क्योंकि जो तुमने अमल किया था, इस अमल की सारी ताकत इस पानी में आ चुकी है। वो इस पानी को ज़ाया करने की कोशिश करेगा, मगर तुमने इसकी हर कोशिश को नाकाम बना देना है और इस पानी को किसी महफूज जगह पर रखना है। मैंने उनकी बात पर सर हिलाया, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो रात हम सब पर बहुत भारी थी। मैंने सारा के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। मैं अब भी इसका राज रखना चाहता था, मगर अब मजबूरन मुझे इसकी हकीकत बताना पड़ी और अम्मी को सब कुछ बता दिया कि वो काला जादू कर रही थी और अपने अमल उल्टा हो जाने की वजह से आग में जल कर मर गई। मगर उसके अमलियात के काले साए मेरे पीछे लग गए हैं और उसने नूर के जिस्म पर कब्जा कर लिया है। इसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। अब वो जब तक नूर के जिस्म से नहीं निकलेगा तब तक उसे ख़त्म नहीं कर सकते। पूरी रात वो खौफनाक आवाज़ में कहके लगाता रहा, हमें तंग करता रहा। कभी दीवारों पर रेंगने लगता, कभी छत पर चलने लगता। वो हमें हर तरीके से खौफजदा कर रहा था। वो नूर को बहुत ज़्यादा अजियत दे रहा था। कभी सर दीवार के साथ मारने लगता, कभी दांतों से खुद को काटने लगता। ये सब कुछ तो मुझे तंग करने के लिए कर रहा था। रात हमने आंखों में काटी। अगले दिन मियाँ जी भी हमारे घर आ गए। उन्होंने जब नूर को देखा तो परेशान हो गए। उन्होंने उसके साथ बात करने की कोशिश की। उस साए ने किसी बात का ढंग से जवाब नहीं दिया। जब मियाँ साहब ने पढ़ाई करनी शुरू की तो उसने नूर को अजियत देना शुरू कर दी। उसने देखा कि मियाँ साहब अपनी पढ़ाई नहीं रोक रहे तो वो खिड़की से कूदकर बाहर चला गया और छत पर पहुंच गया। छत की चार दीवारी पर खड़े होकर वो बोला, अगर ये शख्स यहाँ से नहीं गया तो मैं यहाँ से कूद जाऊँगा। अगर वो ऐसा करता तो उससे कुछ ना होता, मगर नूर की ज़िंदगी को ख़तरा था। वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठती। मजबूरन मियाँ साहब को यहाँ से जाना पड़ा। मैं बहुत परेशान था कि इस मसले का क्या हल निकलेगा। जब मैंने मियाँ साहब से इसकी बाबत बात की तो उन्होंने कहा कि जब तक वो इसके जिस्म से नहीं निकलेगा तब तक ये मसला हल नहीं हो सकता। किसी तरीके से इस साए को जिस्म से निकलना होगा, मगर वो क्या तरीका हो सकता है मुझे सोचने दो, इस बारे में मैं बताऊंगा। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने फ़ोन बंद कर दिया। वो नूर को ना कुछ खाने देता था ना ही पीने देता था। नूर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। वो नूर को हद से ज़्यादा अजियत और तकलीफ़ भी देता था। तभी मुझे मियाँ जी की कॉल आई। उन्होंने मुझे कहा कि घर से बाहर आकर मेरी कॉल सुनो। थोड़ी देर बाद मैं घर आया तो मेरा रुख अपने कमरे की जानिब था। कमरे का मंजर बहुत होलनाक था। वो उल्टे कदमों दीवार पर चढ़ रहा था और साथ अपनी बुद्धी आवाज़ में इंग्लिश सॉन्ग गुनगुना रहा था। मैंने उससे कहा, मेरी बात सुनो। उसने पलटकर मुझे जिन नज़रों से देखा वो नज़र मुझे आज तक याद है। उनकी हौलनाकी और खौफनाकी मुझे क़यामत तक नहीं भूलेगी। मैंने उससे कहा, तुम क्या चाहते हो? तुम कैसे नूर की जान छोड़ोगे? मेरी बात सुन के वो बहुत खौफनाक अंदाज में हंसा और बोला, मैं तुम्हारी मौत चाहता हूँ। तुम्हें ख़त्म करके ही मैं यहाँ से जाऊँगा, वरना मैं उसको यहीं पर ख़त्म कर दूँगा। मैंने जी कड़ा करके कहा, ठीक है, ले लो मेरी जान, ख़त्म कर दो मुझे। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। जब तक तेरे गले में ये तावीज़ है मैं तब तक तुझे हाथ नहीं लगा सकता। तुम इस तावीज़ को गले से उतारो और उसको उतार कर दूर फेंक दो। ठीक है, मैं तैयार हूँ। अगर इससे पहले तुम्हें नूर को छोड़ना होगा, तुम्हें नूर के जिस्म से बाहर आना होगा। वो बोला, ठीक है, अगर तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दूँगा। मैंने कहा, मैंने कोई चालाकी नहीं की। मुझसे अपनी बीवी की तकलीफ़ नहीं देखी जाती। अगर मेरी कुर्बानी देने से मेरा ख़ानदान खुश रह सकता है तो मैं 100 बार भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। अगले ही पल नूर के जिस्म से बाहर आ गया। नूर बेजान होकर धड़म से ज़मीन पर गिर पड़ी। मैंने अपने गले से तवीज़ उतारकर बेड पर फेंक दिया। वो कहके लगाने लगा और कहने लगा, आखिरकार तुमने खुद को मेरे हवाले कर ही दिया। फिर वो रफ्ता रफ्ता मेरी तरफ बढ़ रहा था और खौफ से मैं अपनी जगह पर मुंजमद होकर रह गया। वो बिल्कुल मेरे पास आ गया। उसके हाथ मेरी गर्दन को छूने ही वाले थे। इतने में मियाँ साहब ने तवीज़ मेरी तरफ फेंका। मैंने फ़ौरन तवीज़ गले में डाल लिया। उन्होंने साए को समझने का मौका नहीं दिया और पानी की बोतल उस पर उलटती वो दिल खराश अंदाज में चीखें मारने लगा। वो बुरी तरह से चिल्ला रहा था, तुमने धोखा दे दिया मुझे बेवकूफ़ बनाया तुमने। मैं वापस आऊँगा, फिर से वापस आऊँगा। तुम अब कभी भी वापस नहीं आ सकते। तुम अपने हमेशा के ठिकाने पर जा रहे हो। वो चिल्लाते चिल्लाते गायब हो गया। मैंने पूछा, मियाँ साहब अगर ये फिर से वापस आ गया तो? वो बोले, इत्मीनान रखो, कभी भी वापस नहीं आ सकता। बड़ी मुश्किल से मैं नूर को होश में लाया। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी।
और बहुत ज़्यादा डरी हुई भी थी। कितने ही दिन लग गए थे उसे हवासों में वापस आने में। वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई तो उसने मुझे बताया, जिस दिन आपके चिल्ले का आखिरी अमल था उस दिन वो यहाँ पर आपके रूप में आई थी। उसने मुझे कहा कि इस साय का खात्मा हो गया और मियाँ साहब ने कहा है ये तवीज़ उतार कर रख दो और मेरे पास आओ, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। और मैं उसकी बातों में आ गई। जब मैंने तवीज़ उतार कर बेड पर रख दिया तो वो ज़ोर ज़ोर से कहके लगाने लगी और फिर अपने असली रूप में आ गई। बहुत ज़्यादा खौफनाक लग रही थी। मुझे उससे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मेरे जिस्म में दाखिल हो गई। इसके बाद जो हुआ वो आपको पता ही है। मैंने नूर को तसल्ली दी कि अब वो कभी भी वापस नहीं आएगा। इस बात को अब 10 साल का अरसा गुजर चुका है। मेरे अब 3 बच्चे हैं। हम लोग अपने घर में खुश और मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसके बाद मैंने साय को कभी नहीं देखा। वो हमारी ज़िंदगियों से चला गया था। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।